Welcome to the part 3 of chapter number 1, reproduction in organisms. Today's topic is events in sexual reproduction. There are 3 events takes place in sexual reproduction. First one is pre-fertilization, second one is fertilization, and third one is post-fertilization. Today we will discuss about the pre-fertilization event. It involves the two processes, gametogenesis, which is followed by the second process, gamete transfer. Let's see the gametogenesis. Genesis, that means a formation, synthesis. Hence, it is a gametogenesis. It is the process of the formation of the male and female gamete. Now, what is the meaning of gametes? So gametes are the haploid cells. So there are two types of the cells, diploid and haploid. Diploid cells, that means it contains the copies of each chromosome, while into the haploid cells only one set of the chromosome is present. For example, in human being possesses the diploid cells. In the diploid cells, the 23 pairs of the chromosomes are present. That means total chromosomes are 46. Okay, so in the haploid cell, half number of chromosomes are present. That means that 23 chromosomes are present. Hence, we can say that in haploid cell only one set of the chromosome is present. So this is the difference between the diploid and the haploid cells. Now the gametes are of the two types, homogametes or isogametes, and the second type is heterogametes or anisogamete. Now let's see the what is the meaning of homogametes or isogametes. Hence the two gametes are similar in appearance. दैट मीन्स वो दिखने में मॉर्फोलॉजी में इतने सेम हो गए कि यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश द मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट. राइट, आप मेल और फीमेल गैमेट को डिस्टिंग्विश कर सकते नहीं हो. लुक एट दी पिक्चर नंबर ए. इट इज़ अबाउट द क्लैडोफोरा, जिसमें दो गैमेट्स है और दोनों अपीयरेंस में सेम है. दोनों के पास 2 फ्लैजेला है, 1 न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, और दोनों का मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस सेम टू सेम है. तो आप उसमें मेल और फीमेल गैमेट इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते नहीं हो. और हेट्रोगैमेट्स, तो इसमें दोनों गैमेट्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली काफ़ी डिफरेंट होते हैं, तो इसको आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल फ्यूकस एंड ह्यूमन बींग. लुक एट द पिक्चर नंबर बी एंड सी, जिसमें जो फीमेल गैमेट है वो सर्कुलर है, स्पेरिकल है, और जो साइज़ में लार्ज है. और अगर आप मेल गैमेट देखो तो कंपेयर टू फीमेल गैमेट, मेल गैमेट की साइज़ बहुत ज़्यादा कम रहती है, और अपीयरेंस में भी दोनों काफ़ी डिफरेंट है. राइट, लुक एट योर मेल गैमेट. फ्यूकस के मेल गैमेट के पास फ्लैजेला है, और ह्यूमन बींग के मेल गैमेट के पास टेल है फॉर द लोकोमोशन, फॉर द मूवमेंट. ओके, सो यहाँ पे आप पिक्चर पे से, डायग्राम पे से देख सकते हो कि एनाइसोगैमेट में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट है. अब जो मेल गैमेट होते हैं उसको एंथ्रोजॉइड और स्पर्म्स बोला जाता है, एंड जो फीमेल गैमेट होते हैं उसको एग और ओवम बोला जाता है. Now let's see the sexuality in organisms. So let's first talk about the plants and then in animals. So for plants, the homothalic and monoecious plants, these terms are used to describe the bisexual condition in plants. Okay, now what do you mean by bisexual condition? That means both male and female flowers are present on the same plant, on the same individual. That means a monoecious or homothalic. And heterothalic or dioecious, these terms are used to describe the unisexual condition of plant. That means वो प्लांट के ऊपर या तो मेल फ्लावर प्रेजेंट हो गए या तो फीमेल, दोनों में से कोई एक ही. राइट, या तो हम ये कह सकते हैं कि या तो पूरा का पूरा मेल प्लांट हो गया या तो पूरा का पूरा फीमेल प्लांट हो गया. ओके, अब उसके अकॉर्डिंगली जो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स है उसमें 2 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं. देखो, फर्स्ट है वो है स्टैमिनेट. दैट मीन्स यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स बियरिंग स्टैमेंस. ओके, एंड सेकेंड टाइप ऑफ फ्लावर है पिस्टलेट फ्लावर. दैट मीन्स यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स बियरिंग अ पिस्टिल्स.
ओके तो ये दो टाइप हुए फ्लावर्स के। तो जो मेल फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेमेंस ही प्रोड्यूस होते हैं, कार्पेल्स प्रेजेंट नहीं होते। और जो फीमेल फ्लावर है उसमें सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट होते हैं, स्टेमेंस प्रेजेंट नहीं होते। तो इस तरीके के फ्लावर्स के टू टाइप्स हैं, मेल फ्लावर को स्टेमिनेट एंड फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर कहा जाता है। सेकंड इज द सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स। सो there are two types of the species according to the sexuality: bisexual species and unisexual species. So bisexual species, that means species that possesses the both male and female reproductive organs, and these species are called a hermaphrodite. For example, earthworm, tapeworm, sponge and leech, जिसमें ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। अब बात करते हैं यूनिसेक्सुअल स्पीसीज़ की। तो इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके जैसे कि कॉकरोच है, डॉग है, ह्यूमन बीइंग है। मतलब कि जो मेल स्पीसीज है उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और फीमेल स्पीसीज के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। नाउ लेट्स सी द डाइवर्सिटी ऑफ द सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सो फ्रॉम दिस पिक्चर this picture shows you the hermaphrodites and bisexual hermaphrodites or bisexual organisms or monoecious plants, and unisexual organisms or dioecious plants. These are the example of these kinds of the organism. So the first one is the earthworm. Look, the earthworm is the hermaphrodite. That means it contains the both kinds of the reproductive organs. So testes. Look at here. The testes present into the testis sac are the male reproductive organ, while the ovary is the female reproductive organ. तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। तो ये कैसी स्पीसीज हुई? बाइसेक्सुअल स्पीसीज हुई। अब बात करते हैं बी की। तो in picture B, it is about the unisexual species. So here's the example of the cockroach is given. In male cockroach, the testis is present, while in female cockroach, the ovaries is present. These are the ovarian tubules. Okay, so yes, you can say that the male and female both are the different and both are possesses the different kinds of the reproductive system. Now let's see the C, that is the chara. In chara, it is also a monoecious plant. Look at here, the ogonium. Ogonium, that means female sex organ. So and anthridium, it is the male sex organ. तो एक ही प्लांट के ऊपर आपको मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन देखने मिलते हैं। तो ये कैसा प्लांट हुआ? मोनोशियस प्लांट हुआ। नाउ लुक एट दी ब्रायोफाइट स्पीसीज। सो लुक एट हियर, यहाँ पे आपको फीमेल थैलस एंड मेल थैलस दिया है। थैलस मीन्स ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर जिसके पास ना रूट है, ना स्टेम है, ना ही लीव्स है। सो द प्लांट बॉडी विच इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू or not differentiate into the root stems and leaves is called the thallus. So look at the female thallus. It contains the archegoniophore. It is the female reproductive organ, while into the male thallus there is a anthridiophore is present. It is a female reproductive organ. ओके लोग जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गाइनोशियम भी बोला जाता है। कलेक्टिवली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नोन एज एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नोन एज अ गाइनोशियम। ओके अब यहाँ पे देखो फ्लावर, तो यहाँ पे आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर शो किया है। सो इन पिक्चर नंबर ई, सो लुक एट हियर, स्टेमन्स एंड कार्पेल्स बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर। सो दिस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ प्रेजेंट है। अगर सिर्फ स्टेमन होता तो उसको स्टेमिनेट बोलते, और अगर सिर्फ कार्पेल होते तो उसको पिस्टलेट फ्लावर बोलते। अब बात करते हैं सेल डिवीजन की। सो सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। तो सेल डिवीजन गैमेट फॉर्मेशन के लिए टू टाइप का सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन एंड मियोटिक सेल डिवीजन। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी हैप्लॉइड है,
right? For example, Monera, fungi, algae, and bryophytes. The parental body of this organism is haploid. Okay, so अगर haploid बॉडी का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स बॉडी के सारे सेल्स जो है वो हैप्लॉइड है, राइट? तो ऑलरेडी उसमें ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और गैमेट में भी क्या होता है, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. दैट मीन्स अगर हैप्लॉइड सेल में से गैमेट प्रोड्यूस करने हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहने चाहिए. फॉर दैट इट फॉलोज द माइटोटिक डिवीजन, बिकॉज माइटोटिक डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं. ओके, एंड द सेकेंड डिवीजन, meiotic division, it occurs into the diploid cells. So the parent body of the organisms like Pteridophyta, Gymnosperm, Angiosperm, and most of the animals including human being is the diploid. Okay, so diploid cell, that means 2n. Okay, डाइप्लॉइड सेल का मतलब क्या होता है, 2n होता है. तो 2n में से अगर हमको हैप्लॉइड सेल बनाना है तो रिडक्शन डिवीजन करना पड़ेगा. दैट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या करने पड़ेंगे, हाफ. ओके, लेट्स सी दोनों डिवीजन किस तरीके से होता है. तो मैं आपको फर्स्ट डिवीजन बता रही हूँ. तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें डिवीजन कुछ इस टाइप का होता है. ये है पेरेंटल सेल, ठीक है. उसमें से जब गैमेट्स बनेंगे तो वो इस टाइप के बनेंगे, n में से nn. तो ये क्या हुआ, हैप्लॉइड सेल हुआ, और ये भी क्या हुए, हैप्लॉइड सेल हुए. ओके, तो ये जो डिवीजन हुआ ये कैसा हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ. ओके, नाउ लेट्स सी दी किस तरीके से गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं डाइप्लॉइड सेल में. तो डाइप्लॉइड सेल होता है 2n. ओके, तो 2n में से फर्स्ट डिवीजन जो होगा वो होगा रिडक्शन डिवीजन. तो उसमें से जो सेल्स बनेंगे वो हो गए nn. ये आगे जाके फर्दर और डिवाइड होगा और उसमें से अगेन 2 सेल्स प्रोड्यूस होंगे. ओके, तो ये जो बने लास्ट 4 सेल्स ये सब गैमेट्स है. तो लुक एट हियर, जो पेरेंटल सेल था वो क्या था, 2n, जिसको हम मियोसाइट बोलते हैं. तो ये जो सेल है वो हो गया मियोसाइट, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो कॉपीज़ में होते हैं, पैर में होते हैं. ओके, और उसमें से जब गैमेट्स बनेंगे तो ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होगा. ओके, तो यही लास्ट 2 पॉइंट्स में लिखा है कि जो मियोसाइट होता है वो गैमेट मदर सेल होता है, जो डाइप्लॉइड होता है, जो डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है सिर्फ उसी में ये होता है. ओके, जो गैमेट मदर सेल होता है वो डाइप्लॉइड होता है, और जब वो मियोसिस करता है उसके बाद जब गैमेट प्रोड्यूस होता है तो उसमें ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इनकॉर्पोरेट होता है. नाउ लेट्स सी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द मियोसाइट्स, that means a diploid cell, and in gametes that means a haploid cells of some organisms. So यहाँ पे एक टेबल शो किया है जिसमें आपको प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ ऑर्गेनिजम्स के मियोसाइट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम शो किए है. सो लुक एट हियर, ऑलवेज गैमेट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो मियोसाइट से हाफ ही होंगे. ओके, सो लुक एट हियर, जो ऑनियन में है तो गैमेट है, गैमेट के अंदर क्रोमोसोम है 16, तो मियोसाइट के अंदर क्रोमोसोम है 32. ओके, चलो फन में देखते हैं, ऑफियोग्लोसम. तो उसमें देखो तो मियोसाइट्स में क्रोमोसोम है 1260, जबकि गैमेट में क्रोमोसोम है 630. ओके, सो इस तरीके से अदर स्पीसीज भी है, जैसे कि हम एनिमल्स में ले लेते हैं रैट. तो रैट में देखो तो 42 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है इन मियोसाइट्स, तो हैप्लॉइड में उसके हाफ हो जाएंगे 21. ओके, सो ये टेबल पे से आप देख सकते हो कि जो गैमेट्स है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसाइट से कैसे रहते हैं, हाफ रहते हैं. लोग मियोसाइट्स वो स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो बॉडी में हर जगह नहीं प्रेजेंट होते, वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो टेस्टिस में मियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड फीमेल में ओवरीज में मियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. बॉडी के सारे सेल्स मियोसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ जो टेस्टिस और ओवरीज में है, जो हमारा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, सिर्फ वही जो सेल्स है वही पार्टिसिपेट करेंगे. अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज गैमेट ट्रांसफ़र.
लुक, गैमेट का प्रोडक्शन, गैमेट प्रोड्यूस तो हो गया, अब गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट का फ्यूजन होना ज़रूरी है, राइट। इसके लिए दोनों गैमेट्स एक दूसरे के नियर होना ज़रूरी है, ओके। तो इसके लिए गैमेट ट्रांसफ़र प्रोसेस है जो गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट करती है, और वो मेल और फीमेल गैमेट को टुगेदर करने की प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखो, जो मेल गैमेट्स होते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो मेल गैमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और जो फीमेल गैमेट होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। मोटाइल दैट मीन्स जो मूव कर सके, जो मूवमेंट कर सके वैसे। अब उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि फ्यू फंजाई, एल्गी, इट possesses the both kinds of the gametes and it possesses the both gametes which are motile, ओके, जिसमें दोनों गैमेट्स मोटाइल है, यानी दोनों फीमेल गैमेट भी मूव कर सकता है एज वेल एज मेल गैमेट भी मूव कर सकता है। अब गैमेट ट्रांसफ़र के लिए क्या चाहिए, तो मीडियम चाहिए। इट रिक्वायर्स द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट। जो एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, ये जो प्लांट्स है, इन दिस स्पीसीज द वाटर इज द मीडियम फॉर द गैमेट ट्रांसफ़र। वाटर के थ्रू गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर इसी तरीके से गैमेट ट्रांसफ़र हो गए तो गैमेट लॉस जाने के भी चांसेस है, मतलब गैमेट फीमेल तक पहुंच ही जाए, अगर सपोज 1 या 2 गैमेट ही प्रोड्यूस होंगे सपोज, तो वो फीमेल गैमेट तक पहुंच ही जाए, ऐसे चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूसेस सेवरल थाउजेंड टाइम्स मोर देन द फीमेल गैमेट्स, ओके। तो जिस वजह से उसका जो लॉस होता है वो कंपनसेट हो पाए। जैसे कि मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो एग सेल फर्टिलाइजेशन के लिए, एग सेल के फर्टिलाइजेशन के लिए ओनली 1 स्पर्म सेल इट इज़ रिक्वायर्ड, बट 300 to 400 मिलियंस जितने स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ओके। सो ये जो ट्रांसफ़र होता है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन जो स्पर्म सेल्स का लॉस हो जाता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए मेल गैमेट्स के नंबर्स ऑलवेज ज़्यादा रहते हैं, ओके। अब जो एनिमल्स, ये तो हमने प्लांट्स की बात की। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म होता है गैमेट ट्रांसफ़र के लिए, ओके। अब हम बात करते हैं पोलिनेशन की। सो pollination is the process of the transfer of pollen grains from the anther to the stigma, okay। अगर मैं हायर प्लांट्स की बात करूँ, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूँ, तो उसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर में से, जब एंथर डेहिसेंट होता है तब एंथर में से वो रिलीज़ होते हैं, और जो स्टेमन है, जो स्टिग्मा है उसके ऊपर जाके स्टिक होते हैं। ये जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र की एंथर से लेके स्टिग्मा तक, उसको बोला जाता है पोलिनेशन। पोलिनेशन के 2 टाइप्स है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, okay। Cell pollination is occurs into the monoecious plant and cross pollination is occurs into the dioecious plant। monoecious plant that means जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर प्रेजेंट है, या तो दोनों स्टेमिनेट एंड पिस्टलेट फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, या तो फ्लावर ही बाइसेक्सुअल है, राइट। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, देखो सेल्फ पोलिनेशन के 2 टाइप्स है, ऑटोगैमी एंड गिएटोनोगैमी। सो ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, लुक एट ये जो फ्लावर है उसी के अंदर पोलिनेशन हो रहा है, मतलब कि वही फ्लावर की पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक हो रही है, और पोलिनेशन प्रोसेस सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है, तो वो हो गया ऑटोगैमी। और गिएटेनोगैमी का मतलब क्या, प्लांट इज सेम, प्लांट वही है, बट वही प्लांट के मेल फ्लावर में से पोलन ग्रेन्स जाती है फीमेल फ्लावर में, ओके। तो जनरली ऐसे जो प्लांट होते हैं उसमें मेल फ्लावर अपर साइड होते हैं, फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो लोअर साइड होते हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन ईजी हो जाए, राइट। बट ये प्लांट कैसा रहता है, सेम वही प्लांट के अंदर ये प्रोसेस होती है, तो वो है सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 प्लांट्स डिफरेंट हो गए। तो देखो यहाँ पे ये एक प्लांट की पोलन ग्रेन जा रही है दूसरे प्लांट के ऊपर, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन, जो डायोसियस प्लांट में होता है। अब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर तो पहुंच गए, उसके बाद क्या, तो उसके बाद जो है वो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। इसके लिए पर्टिकुलर पोलन ग्रेन के लिए स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिविटी शो करती है, मतलब सारे पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होते, राइट। तो जिसके लिए स्टिग्मा रिसेप्टिविटी शो करती है सिर्फ वही
पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं। तो जब पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होगा तब उसमें से पोलन ट्यूब जनरेट होगी। ये पोलन ट्यूब ओवरी में से ओवरी तक जाएगी जहाँ पे ओव्यूल होगा। ओव्यूल में जाके वो मेल गैमेट्स, ये जो पोलन ट्यूब है उसके अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। लुक, जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पोलन ट्यूब में ये मेल गैमेट्स को कैरी करती है और उसको ओव्यूल तक पहुंचाती है, नियरर टू द एग, ये एग के नियर पहुंचाती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। ओके, सो दिस इज अबाउट द पोलिनेशन प्रोसेस। अब पोलिनेशन के लिए वेरियस काइंड्स ऑफ द एजेंट्स जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं जिसकी वजह से पोलिनेशन होता है। जैसे कि एयर है, विंड, जिसको विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स है, ये सब क्या है? पोलिनेटर्स है जिसके थ्रू पोलिनेशन प्रोसेस होती है, जो हम मीडियम बोल सकते हैं पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र के लिए। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।